Hello everyone, this is Dr. Manoj Thakur and today we are going to talk about different types of energy resources। और आप सभी जानते हैं कि ये जो टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर ये कितना ज़रूरी है। फिर चाहे आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीवॉक, या फिर कोई इन्वायरमेंट साइंस का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीएससी इन्वायरमेंट साइंस है, एमएससी इन्वायरमेंट साइंस है, या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं इन्वायरमेंट साइंस में, तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में होता ही होता है। और इस टॉपिक में से जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम है, उसमें क्वेश्चंस भी ज़रूर आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उनके जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे, करंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे, उनके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। So starting with the introduction, myself Dr. Manoj Thakur, I am Assistant Professor of Environment Science at Department of Higher Education Himachal Pradesh and currently posted at Vallabh Government College, Mandi. Starting with the definition and the types of energy resources. So as we all know that energy is basically the ability to do work, and energy resources are various substances or phenomenon through which energy is either produced or generated. Now coming to the types of energy resources. So energy resources could be broadly divided into two main categories. The number one is renewable energy resources. They are also known by the name of non-conventional energy resources. The second category is non-renewable energy resources. They are also known as conventional energy resources because they are used since a very long time as a convention. So the major difference between renewable and non-renewable energy resources is that renewable energy resources could be renewed or replenished within human time scale. So if they are used sustainably, then these energy resources could be used indefinitely. मतलब काफी लंबे समय तक, indefinitely मतलब कभी ना खत्म होने वाले, एक तरीके से जो ह्यूमन टाइम स्केल के अंतर्गत जो रिन्यू हो सकें और उसको हम बार बार यूज कर सकें अनलिमिटेड टाइम तक। ठीक है, इस तरह के एनर्जी रिसोर्सेज को कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि ह्यूमन टाइम स्केल में रिन्यू नहीं होते, विच कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड विद इन ह्यूमन टाइम स्केल। सो इफ they are used unsustainably, these energy resources are going to be exhausted one day. So examples of renewable energy resources are like solar, wind, hydropower, tidal power, geothermal energy. All these are the examples of renewable energy resources. And the examples of non-renewable or conventional energy resources are like fossil fuel based energy resources, which are coal, oil, natural gas, etc. So first starting with the renewable energy resources, as I already mentioned that these energy resources could be replenished within human time scale so that they can be used more or less indefinitely in case or if they are used sustainably. And the example of these energy resources, as already mentioned, are solar, hydro, wind, energy from waste, then biofuels, tidal power, photovoltaic energy, geothermal, etc. So all these are the examples of renewable energy resources. Now the question arises that why we need renewable energy. The answer is very simple. There are mainly two reasons. दो कारण हैं इसके. The first reason is that none of our major energy resources, which are basically fossil fuel based resources, so none of our major energy resources are sustainable, means they are volatile and they are going to exhaust one day in coming future. The second reason is that almost all of our major energy resources, which are basically fossil fuel based resources, they pollute our environment. So in order to safeguard our environment, we need to develop energy technologies that are non-polluting and safe. So these renewable energy resources are basically clean energy resources. They are non-polluting energy resources because they don't create any type of pollution. Also they are renewable, means if they are used sustainably, अगर जुडिशली उसको यूज करें तो काफी लंबे समय तक जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं इसको हम लोग यूज कर सकते हैं.
So we will be starting with the first energy resource, that is the solar energy. So solar energy is basically the energy that is received by the earth from the sun. This energy is basically emitted in the form of radiant energy, in the form of electromagnetic radiations, and also the heat from solar radiation. Basically this is in the form of light and heat energy that we get from sun. As we all know that it is, or the solar energy is the biggest and the most abundant energy source that is available on earth. और डेली जो है लगभग 1,73,000 terawatts of solar energy strikes earth continuously, and this much energy is more than approximately 10,000 times the total world's energy use, world's total energy use. Now coming to the solar radiations, so as I already mentioned, the solar radiations जो है basically they are electromagnetic radiations. So ये electromagnetic radiations जो है mainly तीन टाइप की होती हैं. The first type is direct radiations और the beam radiations. ऐसी radiations जो बिना किसी चीज से टकराए, बिना किसी चीज से diffuse हुए, बिना directly earth के ऊपर पहुंचती हैं. ठीक है. The second one is diffuse radiations. Diffuse radiations are those radiations जो रास्ते में different objects से like water vapors, pollutants, aerosols, एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें प्रेजेंट हैं उनसे कहीं ना कहीं टकराकर जो है अपना जो स्ट्रेट लाइन का पाथवे है उसको चेंज कर कर वो डिफ्यूज हो जाती हैं. ठीक है. और द थर्ड वन इज रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस. रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस आर दोज रेडिएशंस दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक है. जो सोलर रेडिएशंस अर्थ से टकराती हैं और अर्थ से टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होती हैं या फिर क्लाउड से टकराती हैं और क्लाउड से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं. Those radiations are known as reflected radiations. Now we will discuss the applications of solar energy. So starting with the first application of solar energy, that is solar photovoltaic. तो सोलर फोटोवोल्टेइक और सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज कर कर हम जो है सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है. जो सनलाइट है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सोलर फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो सोलर फोटोवोल्टेइक्स आर बेसिकली एरे ऑफ सोलर सेल्स और ये जो है सेमीकंडक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज कर कर जो है जो सन की रेडिएंट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. और ये जो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं बेसिकली एक सिंगल यूनिट जो है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं एक सिंगल यूनिट को हम सेल कहते हैं. जब काफी सारे सेल्स को एक सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं देन इट इज नोन एज मॉड्यूल एंड व्हेन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल देन इट इज नोन एज एरे. ठीक है. और जो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं दे आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स. दे आर मोनोक्रिस्टलाइन और सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन सेल्स. देन नंबर 2 इज मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स एंड नंबर 3 इज अमॉर्फस सिलिकॉन सेल्स. ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं और इनकी जो एफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने की फ्रॉम सोलर एनर्जी दैट आल्सो वेरीज. ठीक है. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ पीवी सिस्टम्स और फोटोवोल्टेइक सिस्टम्स. द फर्स्ट वन इज स्टैंड अलोन सिस्टम. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज बेसिकली ए सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम. मीन्स इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड. सो इसमें जो भी एनर्जी जनरेट होगी वो इसी में जनरेट होगी और इसी में यूज होगी. ठीक है. और ड्यूरिंग लो सन आवर और जो नो सन आवर्स है मतलब मौसम खराब है या नाइट का टाइम है तो उसमें एनर्जी के लिए जो है इसमें सम सॉर्ट ऑफ बैकअप सिस्टम रहता है या बैटरी रहती है या स्टोरेज सिस्टम रहता है जो कि ड्यूरिंग नो सन आवर्स और लो सन आवर्स जो है काम करता है. द सेकेंड वन इज ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम. जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो ये सिस्टम है ये ग्रिड से कनेक्टेड रहेगा. ठीक है. और इसमें एक इन्वर्टर रहता है जो कि जो फोटोवोल्टेइक सिस्टम में जो डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है एट ग्रिड वोल्टेज. और जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट होती है दैट मे बी सप्लाइड टू ग्रिड. मीन्स अगर आपने ये सिस्टम घर में लगाया है और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी डिमांड से ज़्यादा आप जनरेट कर रहे हैं तो जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसको
सेल कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, ठीक है। उसमें एक रिवर्स मीटर लगा रहेगा जिसमें कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है आपने उस ग्रिड में दी है उसकी वैल्यू इसमें कितनी यूनिट्स आपने दिए हैं वो आ जाएगी, ठीक है। और ड्यूरिंग लो प्रोडक्शन इसका एक और फायदा है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस हो रही है और आपकी डिमांड ज्यादा है, तो जैसे मौसम खराब हो गया या रात का टाइम है, ठीक है, या बर्फ पड़ गई या बारिश हो गई, ठीक है, जब आपके जो सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होने लगी तो उस टाइम पर जो है इसमें स्टोरेज सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी ग्रिड से जो है ली जा सकती है। तो इसमें जैसे मैंने बताया रिवर्स मीटर है, उसमें पूरा आपका अकाउंट मेंटेन रहेगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने ग्रिड में सप्लाई की है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने ग्रिड से ली है। अकॉर्डिंगली जो है अगर आपने ज्यादा ग्रिड को सेल की है तो आप उसमें फाइनेंशियली जो है गेन कर सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं, और अगर ग्रिड से ली है तो अकॉर्डिंगली आपको पर यूनिट के हिसाब से जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। And the third one is hybrid system. Hybrid system means there are more than one source of energy. जैसे कि एक इसमें ऑलरेडी सोलर एनर्जी है, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा इसमें कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा जो कि आपके लो सन और नो सन, जब आपका मौसम खराब है या रात का टाइम है उस टाइम पर काम कर सकता है और आपको कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई दे सकता है। तो इसमें जो ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स यूज किए जा सकते हैं वो हैं, जैसे कि नंबर 1 आपका डीजल पावर्ड इंजन इसमें या जनरेटर इसमें लगा हो सकता है, ठीक है। जब आपकी सोलर एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है तो आपका जनरेटर के थ्रू जो है आप एनर्जी ले सकते हैं। दूसरा इसमें एक और सिस्टम हो सकता है कि इसमें आप एक विंड टरबाइन अटैच कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जब धूप नहीं होगी तो हवा भी नहीं होगी, मे भी हो सकता है कि धूप नहीं है तो हवा चल रही हो, तो विंड टरबाइन के थ्रू जो है विंड इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जा सकती है। तो इसमें जो है सोलर एनर्जी के साथ कोई ना कोई ऑल्टरनेट सिस्टम अटैच रहता है ताकि कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई जो है उसको इंश्योर किया जा सके। In this picture you can see that the solar photovoltaic system could be ground mounted if they are mounted on the ground, they could be roof mounted if they are mounted on the roof, and they could also be pole mounted if they are mounted on some sort of pole. So there are different types of solar systems that are mounted on different types of terrains as per the topography of the area. Now coming to the parameters that are influencing the photovoltaic system operations. So there are various parameters जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नंबर 1 इज सोलर रेडिएशंस। तो सोलर रेडिएशंस के साथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस जितनी ज़्यादा सोलर रेडिएशंस होंगी उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगी। और जो सोलर रेडिएशंस हैं वो आपकी डिपेंड करेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, और जो आपका फोटोवोल्टेक सिस्टम लगा है वो किस एंगल पर लगा है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। द सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर के साथ भी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा जो है आपकी पावर जनरेशन होगी, बट एट द सेम टाइम जो ये ज़्यादा टेम्परेचर जो है आपकी बैटरी की लाइफ जो है उसको भी रिड्यूस करता है। द थर्ड वन इज एजिंग इफेक्ट। If the solar cells are properly encapsulated, they normally have a very long life, और जो पावर जनरेशन है वो इतनी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं होती है नॉर्मली। और अगर तीनों टाइप के जो सिलिकॉन सेल्स हैं उनकी बात की जाए तो एजिंग इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका अमॉर्फस सिलिकॉन सेल्स में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट इज शेडिंग इफेक्ट। तो शेडिंग इफेक्ट जो है काफ़ी बुरे तरीके से जो है आपकी सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको ख़राब कर सकता है। अगर एक या दो सेल भी अगर आपके जो हैं कवर्ड हैं या शेडिड हैं तो वो पूरे मॉड्यूल की जो कैपेसिटी है उसको ख़राब कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, और लॉन्ग टाइम टर्म में जो है पूरे मॉड्यूल को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मिसमैचिंग ऑफ मॉड्यूल, रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स एंड केबल्स, ये सारे फैक्टर्स भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो आपकी सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक जो है डिग्रेड हो सकती है। और सोलर फोटोवोल्टेक के सिस्टम के ऊपर धूल जम जाना, ठीक है, या मिट्टी का होना, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है बेसिकली। Next application of solar energy is solar water heating systems. So solar water heating systems are basically used to heat water by using the solar energy. तो जो सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम होता है उसमें मेनली जो है
4-5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है आपका सोलर थर्मल कलेक्टर, जो सोलर रेडिएशंस को कलेक्ट करता है, हीट एनर्जी को। दूसरा है एक वाटर स्टोरेज टैंक, जिसमें कि आपका पानी स्टोर रहता है। थर्ड वन इज द पॉइंट ऑफ यूजेस, जहां भी आपके टैप लगा है बाथरूम में या बाहर। नेक्स्ट है आपका इंटरकनेक्टिंग पाइप्स का एक सिस्टम रहता है, और एक फ्लूइड सिस्टम भी रहता है इन केस ऑफ सर्टेन सिस्टम्स, जिसमें कि अगर कम जो है आपका सोलर टेम्परेचर है तो उस केस में भी आपका जो है एक वर्किंग फ्लूइड को यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है आपका सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। Now coming to the types of solar water heating systems, they can be basically mainly of two types, passive systems and active systems. Passive system का मतलब है कि they don't use any pumping device, instead they work on the principle of convection. मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई वाटर पंप यूज नहीं किया जाता। और जो एक्टिव सिस्टम्स होते हैं उसमें कोई वाटर पंप जो है बेसिकली यूज किया जाता है। Now coming to the passive systems, different types of passive systems, they could be direct, they could be indirect. डायरेक्ट सिस्टम में हम लोग जो है डायरेक्टली वाटर को हीट करते हैं बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी, बाय कलेक्टिंग द सोलर रेडिएशंस थ्रू द सोलर कलेक्टर। और इनडायरेक्ट सिस्टम में वी यूज सर्टेन काइंड ऑफ एंटी फ्रीज हीट ट्रांसफर फ्लूइड लाइक अमोनिया विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट दैट वाटर। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है अमोनिया का वो वाटर से कम है, इसलिए वो कम टेम्परेचर पर भी इजीली बॉयल कर जाता है। और कम टेम्परेचर पर भी, यानी कि जब बादल हैं या कम टेम्परेचर है, बाहर मौसम खराब है, उस टाइम पर भी जो है आपको जो है हॉट वाटर की फैसिलिटी देता है। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्टिव वाटर हीटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया कि एक्टिव वाटर हीटिंग सिस्टम में वी बेसिकली एम्प्लॉय ए पंप दैट बेसिकली सर्कुलेट्स द वाटर और HTF बिटवीन द कलेक्टर एंड द स्टोरेज टैंक। फर्दर जो एक्टिव वाटर हीटिंग सिस्टम है वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट सिस्टम्स, जिसमें कि हम लोग वाटर को यूज करते हैं और डायरेक्टली वाटर को हीट अप करते हैं। और दूसरा है इनडायरेक्ट सर्कुलेशन सिस्टम और इनडायरेक्ट एक्टिव हीटिंग सिस्टम। इसमें बेसिकली एम्प्लॉय ए एंटी फ्रीज हीट ट्रांसफर फ्लूइड। ये बेसिकली सिस्टम ऐसे एरियाज में यूज होता है जहां पर बर्फ पड़ती है, या फिर क्योंकि जहां पर बर्फ पड़ेगी वहां पर क्या होगा कि आपके जो वाटर है ड्यूरिंग विंटर्स जो है वो फ्रीज कर जाएगा। और वाटर के फ्रीज होने से, क्योंकि बर्फ की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, तो आपके जो पाइप्स हैं सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के वो फट सकते हैं। तो वहां पर जो है एक हीट ट्रांसफर फ्लूइड का यूज किया जाता है, ताकि जो है, और ये बेसिकली एंटी फ्रीज होता है, ये फ्रीज नहीं करता इवन माइनस टेम्परेचर पर भी। तो बेसिकली आपका जो सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है वो सेफ रहता है। And the next application is solar pond. So solar pond basically constitutes 3 layers with increasing salt concentrations. जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसमें सबसे कम सॉल्ट होता है, रिलेटिवली फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। जो सेकंड लेयर है उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, दैट इज बेसिकली नोन एज इंसुलेशन जोन। एंड द थर्ड जोन इज नोन एज स्टोरेज जोन, जिसमें कि मैक्सिमम सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है। और जितनी ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा सोलर एनर्जी जो है ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो सरफेस लेयर है दैट इज द कूलेस्ट वन। द इंसुलेशन लेयर जो है मिडल लेयर है वो उसमें मीडियम टेम्परेचर रहेगा। और जो आपकी सबसे नीचे वाली यानी कि स्टोरेज लेयर है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई सॉल्ट कंटेंट। Now this is the diagram of a solar power electric power plant. So this electric power plant basically employs the temperature difference between the surface layer and the bottom layer. जैसे कि मैंने बताया कि जो surface layer है उसमें टेम्परेचर कम है और bottom layer जो है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है। हॉट वाटर जो है आपका वो बॉटम लेयर में है, तो बॉटम लेयर से हम लोग हॉट वाटर पंप करेंगे, उसको इवेपोरेटर में इवेपोरेट करेंगे, स्टीम जनरेट होगी। स्टीम जो है आपकी जाएगी टरबाइन में, टरबाइन को रोटेट करेगी, टरबाइन इज अटैच टू द जनरेटर, जनरेटर विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद वो स्टीम आपकी पहुंचेगी कंडेंसर में, ठीक है। कंडेंसर मीन्स जहां पर हम स्टीम को वापस वाटर में कंडेंस कर देंगे। और कंडेंस करने के लिए हमें टेम्परेचर जो है वो कम करना पड़ेगा सराउंडिंग का, और उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग जो है कोल्ड वाटर पंप करते हैं जो सरफेस लेयर है, क्योंकि सरफेस लेयर में आपका कोल्ड वाटर है, उसको पंप कर कर जो है आपकी स्टीम को वापस कंडेंस करेंगे, ठीक है। और आपकी स्टीम जो है वो वापस कंडेंस होकर वापस सोलर पॉन्ड में जाएगी, और कंडेंसर का पानी भी जो है वो
दोबारा से वापस आपका सोलर पॉन्ड में जाएगा। इस तरीके से आपका जो है ये सोलर पॉन्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेट करता है, जिसमें कि हम सरफेस लेयर और बॉटम लेयर के टेम्परेचर के डिफरेंस को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टरबाइन एंड ए जनरेटर। These are various applications of the solar pond. It could be used for the power generation. It could be used for process heating like heating, ventilation and cooling. It could be used for water desalination. It could be used for refrigeration, then drying. It can also be used for heating of the buildings. Then it could be used for industrial hot water as well. The next application is solar chimney. और सोलर चिमनी बेसिकली एक हीटिंग, वेंटिलेशन एंड कूलिंग सिस्टम है जो पुराने समय में जो बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी उसमें यूज़ किया जाता था। स्पेशली राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सोलर चिमनी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। तो इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक चिमनी बनी हुई है जो आपके घर के साथ बनी हुई है, ठीक है। और इसमें एक वर्टिकल शैफ्ट है जो कि सोलर एनर्जी से हीट हो रहा है। दिस शैफ्ट इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से खाली है। और आप एक पाइप देख सकते हैं जो घर के अंदर खुल रहा है और ग्राउंड के काफी नीचे तक जा रहा है, और नीचे जाने के बाद ये घर से कुछ दूरी पर जो है वर्टिकली ऊपर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये काम कैसे करेगा, जैसे ही सोलर लाइट या सोलर एनर्जी या सोलर हीट एनर्जी जो है आपकी इस चिमनी पर पड़ेगी, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और अंदर जो एयर है इसके अंदर वो एयर वार्म हो जाएगी। और वार्म एयर आप सभी जानते हैं कि वार्म एयर ऑलवेज गोज अपसाइड, ठीक है, वो ऊपर निकल जाएगी। इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो ये जो चिमनी है ये कनेक्टेड है आपके अंदर बिल्डिंग से। तो ऑब्वियसली जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये जो घर के अंदर की एयर है वो आपकी जाएगी चिमनी के अंदर। अब आपके घर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो अब घर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होने से जो आपकी पाइप लगी है जमीन के नीचे से हीट एक्सचेंज के लिए, वहां से ये एयर को पुल करेगा। तो अल्टीमेटली आपकी बाहर की एयर जो है इस पाइप के थ्रू होते हुए घर के अंदर आएगी और चिमनी से बाहर जाएगी। अब आप ये कहेंगे कि इसमें बेसिकली हीटिंग या कूलिंग कहाँ हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के कुछ मीटर नीचे जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द ईयर मोर और लेस कांस्टेंट रहता है। मे बी आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए ज़मीन के नीचे जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री या 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, ठीक है। तो जब गर्मियां हैं तो आउटसाइड टेम्परेचर इज अराउंड 35 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आपकी ये 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली एयर जो है इस पाइप के थ्रू जमीन के नीचे से होकर आएगी, तो जमीन के नीचे जो वो एयर है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। और वो जो एयर है उसका टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाएगा। और जब वो आपके रूम के अंदर आएगी तो आपको एक ठंडक का एहसास देगी, ठीक है, मतलब एक तरह से एसी का काम करेगी। और यही सिस्टम जो है सर्दियों में आप एज्यूम कर लीजिए बाहर का टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो बाहर की जब ठंडी हवा आपके अगेन जमीन के नीचे से आएगी, जमीन के नीचे मैंने बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, ठीक है। तो दोबारा से वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा जब बाहर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपको 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर वाली हवा जो है रूम के अंदर मिल रही है। तो दैट मीन्स वो उस टाइम पर जो है वो हीटिंग का काम करेगा। So solar chimney basically works on the principle of heating, ventilation and cooling. Now the next technology that we will discuss is SODIS. SODIS stands for solar water disinfection. This particular technology is used for the disinfection of water. दिस इज बेसिकली बायोलॉजिकल डिसइंफेक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल पेट बॉटल लेते हैं, जैसे मिनरल वाटर या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, उसमें पानी भर देंगे और उसको अपनी छत पर रख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट में, ठीक है। और लगभग 6 घंटे 8 घंटे उसको रखेंगे। 6 घंटे 8 घंटे बाद जो उस वाटर में जितने भी जर्म्स होंगे या बायोलॉजिकल कोई भी कंपोनेंट उसमें होगा या बैक्टीरिया होगा वो खत्म हो जाता है एंड दैट वाटर बिकम सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये ओनली दैट दिस इज फॉर डिसइंफेक्शन, नॉट फॉर वाटर फिल्ट्रेशन और ट्रीटमेंट। इसमें कोई फिजिकल इम्प्योरिटी खत्म नहीं होगी, ओनली द बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज जो हैं वो इसमें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। उसको कूल करने के बाद आप पी सकते हैं। Next application of solar energy is cooking. So solar energy is also used for cooking, and these cookers are known as basically solar cookers. These cookers may be of 2 to 3 types. Number one is box type cooker.
जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज सिंपल बॉक्स जिसके ऊपर एक ग्लास रखा है, अंदर एक कंटेनर रखा है, ठीक है, और एक ऊपर रिफ्लेक्टर लगा है। तो आपकी सोलर एनर्जी डायरेक्ट पड़ेगी, प्लस जो रिफ्लेक्टर में पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होकर भी आपके डायरेक्ट किस पे पड़ेगी, आपके कंटेनर पर पड़ेगी। इस कंटेनर पे जो भी आप पानी रखेंगे तो पानी बॉयल हो जाएगा, कुछ खाना रखेंगे तो खाना आपका पक जाएगा, ठीक है। और इसमें जो टेम्परेचर है लगभग 90 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंच जाता है। So these are solar vehicles. Nowadays the solar energy is also used for running the vehicles, but this is not a new technology or new application. We are just using the photovoltaic technology to power our vehicles basically. Again, this is the picture of another solar photovoltaic technology. Here we are using the solar photovoltaic cells to power an plane, which is known as solar plane, and the first name of the first solar plane was Impulse. Now coming to the Indian scenario of solar energy. So as we know, India is a tropical country and it is also a very densely populated country, and we get very high solar insolation in India. In India, we approximately receives 5,000 trillion kilowatt hours of pure solar energy every year, and in terms of the total installed capacity, solar installed capacity, India ranks 4th after USA, Germany and China. The estimated potential for solar energy in India is 748 gigawatts, means 748 gigawatt energy जो है यहाँ जनरेट की जा सकती है, provided if 3% wastelands are covered with the solar photovoltaic cells. जो इंडिया के 3% जो wasteland areas हैं, जो बंजर भूमि है, उसको भी अगर हम लोग सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से कवर कर लें। और जो एक्चुअल में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया की सोलर पावर जनरेशन की, वो है 61.97 गीगावाट, मींस 61.97 गीगावाट एक्चुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया में सोलर पावर जनरेशन की। Now coming to the benefits or advantages or limitations or disadvantages of the solar energy. First of all, starting with the benefits or advantages, the first benefit is that it is renewable source of energy, means it is never going to end and we can use this energy source indefinitely. The second is that it is environment friendly. It is a clean source of energy. It doesn't create any kind of environmental pollution. Third one, it does not include any moving parts. Okay, it is easy to handle. The fourth one, it has very little or no maintenance at all. It doesn't create any noise, so also there is no noise pollution. If you install a solar power plant or solar energy plant in your house or in your home, then you will get free electricity, means you don't have to pay any monthly electricity bill. It can also be made completely self-sufficient if it is used in hybrid mode, or if a large scale solar power plant is used at your home. मतलब बड़ी कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है आपके घर की, वो आप इसी से फुलफिल कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप कुछ एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और एक ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं, तो जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप सेल कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो सकता है ये। नाउ कमिंग टू द लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज और लिमिटेशन इज दैट इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि जो इसकी फर्स्ट टाइम वन टाइम इंस्टॉलेशन या इनिशियल जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक इसकी लिमिटेशन हो सकती है। दूसरा है इट रिक्वायर्स ए वेरी लार्ज एरिया टू कवर, क्योंकि जैसे इसमें मैंने बताया कि फ्लैट सरफेस सोलर पैनल हमें इंस्टॉल करने होते हैं, सो वी नीड ए वेरी लार्ज एरिया टू कवर फॉर कमर्शियल जनरेशन बेसिकली। और जो पोल्यूशन है या डस्ट है या डर्ट है, वो आपके सोलर पैनल्स को डिग्रेड कर सकता है। इवन जो स्नो है, बर्फ जहाँ पड़ती है, वहाँ पर आपके सोलर पावर पैनल जो है वो डिग्रेड हो सकते हैं। एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ दिन के टाइम काम करेगा, रात को काम नहीं करेगा, जब मौसम खराब होगा तब काम नहीं करेगा। मीन्स इट इज अनरिलायबल, मतलब इसके ऊपर आप 100% रिलाय नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है लोकेशन स्पेसिफिक है, मतलब जहां पर आपकी सोलर रेडिएशंस ज़्यादा हैं, ठीक है, अच्छी क्वांटिटी में सोलर रेडिएशंस आती हैं, वहीं पर ये फिजिबल है, और जहां पर सोलर रेडिएशंस कम है या नहीं आती हैं वहां पर ये फिजिबल नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट सोलर एनर्जी। आई होप काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको इसमें जानने को मिली होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइड्रो पावर के बारे में, उसे भी ज़रूर सुने। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।